Good morning, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss some important questions which will be related to aptitude section. So, if you are new to this channel, then you can subscribe to our channel and press the bell icon also, so that you will get all the updates whenever I will upload a new video. So, let's move to the question number 48. That is the first question for this video, and in this video we will try to discuss some of the questions. So let's move to question number 48. He is saying, in a bag there are coins of 25 paisa, 10 paisa and 5 paisa are in the ratio 1:2:3. If there are rupees 330 for all, how many 5 paisa coins are there? So very interesting question from ratio and proportion. So how to solve this question? Let's see. Basically, students, ratio is given. So firstly you have to write the amount. So firstly you have to write the amount ratio. Amount ratio is 25 rupees, 25 paisa coins are there, 25, 10 paisa and 5 paisa. Then students, we have coins ratio. So coins ratio is 1:2:3. So 1:2:3. So this is the basically, now we get the ratio of amount. Okay, wait, this is not amount ratio, this is you can say ratio of paisa, ratio of coins. 25 paisa coins are there, 25, 10 paisa. Wait, this is not coin ratio, amount ratio we will decide. So this is paisa ratio, you can say. So paisa ratio is 25 paisa, 10 paisa and 5 paisa. So इत्थों की करना स्टूडेंट्स, ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेशियो ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि ए वाले अपने ਕੋਲ coins ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ coins ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ 25 ਪੈਸਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ 1 coin ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਹੈ ਤੇ 5 ਪੈਸਾ ਦੇ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਾਉਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਾਉਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਪੈਸੇ ਦੇ coins ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 25 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਪੈਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 × 3 15। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 5 ਦਾ 5:4:3। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਤੇ 4 9 ਤੇ 3 12। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ 12। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 30 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, 30 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ? 3000। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ 12 ਦੂਣਾ 24। ਸੋ 240 ਪੈਸੇ। 1 ਮਿੰਟ, 12 ਦੂਣਾ 24, 12 5 60। ਸੋ 250 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 250 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਇੱਥੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1250। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਇਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲੋ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ? 3। ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 750 ਪੈਸੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ 750 ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 750 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। 750 ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ 5 ਪੈਸੇ ਕੋਇਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 750 ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? 750 ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨਸ ਹੋਣਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੇ n × 5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਥੋੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 15 5 75, ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? n ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 150। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
सब तो पहला आप कॉइन्स की रेशो लिख लेनी है कि कॉइन्स की अमाउंट किस तरह है, जिस तरह मतलब 5 पैसे किन्ने किन्ने ने, जिदा 25:10:5। आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद रेशो, क्योंकि देखो रेशो ना मल्टीप्लाई करांगे तां ही आएगा ना अपने को अमाउंट की रेशो किमें होएगी कि 25 पैसे के किन्ने सिक्के होणगे, 25 पैसों के किन्ने पैसे बनणगे, 5 पैसे के सिक्किਆਂ ਨਾਲ किन्ने पैसे बनणगे, वो आप अमाउंट तो फाइंड आउट करांगे। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ 25:25, 10 ਦੂਣਾ 20 ਤੇ 5 ਤੀਆ 15। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ 12 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, 30 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 3000 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 250 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 5 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਸੋ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 250 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 750 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋਇਨਸ ਹੈ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, देखो n ਕੋਇਨਸ ਹੋ ਗਏ, n ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 750, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ 150 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ PSPCL ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ C ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होएगा, किते कुछ नहीं पता लगा तो तुसी जरूर पूछना है। गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 दी। सो क्वेश्चन नंबर 49 तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल कह रहा है 2 numbers are in ratio of 3:5 if 9 is subtracted from both the number। देखो इत्थे कोई शॉर्टकट लाने का कोई बेनिफिट खास हुंदा नहीं है। इत्थे की है तुसी जल्दी नाल क्वेश्चन नूं करना हुंदा है। करना की है, देखो सिंपल जा लॉजिक है, 3x - 9 कर दो, क्योंकि x की हो गया, x इज द HCF फेयर। 5 और 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ 5x। ਸੋ 9 ਇਜ਼ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ 5x ਆਲਸੋ। ਸੋ 5x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਲੀ 12:23। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 23 ਹੈ 69 69x, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 23 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ 207, बराबर आ गया जी 12×5 60x माइनस 12 9 108। सो 60x माइनस 108 ते अगे चलते हैं जी 108 ते इत्थे आ जाएगा जी 9x बराबर 99। ठीक है, थोड़ा जल्दी करता मैं, एक स्टैप घटाता। 9x बराबर आ गया जी थोड़े 99 दे, दैट मीनस x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई थोड़े को 11। स्टैप बाय स्टैप दस रहे हैं ताकि कोई इदा ना हो किसी को कोई लगे कि रट्टा लगा रहे हैं या कुछ होर करवा रहे हैं। सो पूरा स्टैप का स्टैप आप कंसैप्ट चल रहे हैं। एक्स की वैल्यू आ गई 11 एक्स नूं पुट करांगे तो तुहानूं पुछया की है द फर्स्ट नंबर इज, तो फर्स्ट नंबर जिहड़ा होया जिहड़ा 3 वाला है 3:5 है ना, 2 नंबर की रेशो। तो पहला नंबर तो 3x होया, तो पहला नंबर तुहानूं पुछया गया है, पहला नंबर 3x हो गया, 11 × 3 33 तुहाडा आंसर आ जाएगा जी। सो इस को तरीके नाल क्वेश्चन शुरू करना है। आई थिंक विद इन, जे पेपर थोड़े को अवेलेबल होएगा पैन दे नाल करोगे तो विद इन 10-15 सैकेंड दे विच थोड़े को आंसर आ जाएगा। हाँ, कंसैप्ट थोनों पता होना चाहिए कि क्वेश्चन करना किवें है, ये नहीं है कि तुसीं बैठे देख रहे हो उत्थे टाइम खराब कर रहे हो। जे थोनों पता होएगा क्वेश्चन किवें करना फिर टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 49 दा ऑप्शन नंबर बी, 33 विल बी दा फर्स्ट नंबर। सो इदा ही 55 भी दिता होया, बट जे 55 होंदा 55 सैकेंड नंबर आना सी, ठीक है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि पूछया क्यों है, क्योंकि मैं तो गलतियां बहुत कीतियां इदां दियां कि
पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्वेश्चन कर ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। बड़ा कुछ देखिया ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। चलो वो गल्लां करन दा टाइम नहीं है, थोड़े नाल क्वेश्चन साझे करने ने। तां 2 क्वेश्चन हो चुके ने, अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते। क्वेश्चन नंबर 50 ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन रेशो 3:5:7 रिस्पैक्टिवली। तो 3 परसनस ने ए बी सी, सैलरीज उन्हां दियां हैगियां ने 3:5:7 ਦੇ ਵਿੱਚ। इफ देयर सैलरीज वर increased by 50%, 60% and 50% respectively, what will be the new respective ratio of their salaries? सो इंटरस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बारी ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। बाकी कंपीटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कंपीटिशन की कोई लिमिट नहीं रही हुण, क्योंकि बहुत दुनिया है जो अलग अलग सोर्सिस तो पढ़ रही है, तो कोई लिमिट नहीं रही जी। हुण तो देखो, हुण इत्थों मैं 3 का 50% इनक्रीज करांगा तो 1.5 आएगा, तो 1.5 लेने की बजाय मैं इहनूं 30 मान लैना आ। मैं थोड़ा जिहा ईजी मैथड लेके चलदा हुंदा इस विच। इत्थे मेरे कोल आ गया 50, 30, 50 एंड 70। देखो मैं 0 क्यों लगा ली, क्योंकि मैं जो परसेंटेज करनी है ना 50%, 60%, फिर मैं पॉइंटा के चक्कर च नहीं पैना चाहता, इस करके मैं इन्हूं चेंज कर लिया। मैं कई बार 300, 500, 700 भी ले सकता। सो डिपेंड करता है हर चीज़ नूं किद्दां समझना है। सो मैं ले लिया जी 30, 50 एंड 70। सैलरी किहदी सीगी ए बी ते सी दी। हुण 30 दे विच किन्नी इनक्रीज होई वो देखो, 30 दे विच किन्नी इनक्रीज हो गई। पहले केस दे विच 50%, सो 50%, 30 का 50% कितना हो गया 15। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਧ ਲੈ ਲਿਆ, 15 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ 50%, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ 19%, ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਰ ਔਨ ਆ। ਚਲੋ ਚਾਰਜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਚਾਰਜ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। सो इत्थों 15 आ जाएगा। अगले की गल करांगे तो अगले दे विच कितना आ जाएगा, अगले दे विच आ जाएगा अपना 50 की सैलरी कितनी, बी की सैलरी 50 लिखी हुई है अपना, इनक्रीज कितनी हुई है, दैट इज 60% इनक्रीज हुई है। तो 60% 50 का कट लो, 50 का 60% बन जाएगा 30, 50 का 60% 30 बन जाएगा। 1 मिनट जी, चार्ज ओके। सो इत्थों 50 का आ जाएगा 30, 60% कढ़ने आपां इत्थों। हुण अगले चलते हैं 70 का, फिर कितना इनक्रीज होया, 70 का फिर 50% इनक्रीज होया। 50% का मतलब अध, तो इसका मतलब इत्थे 35 आ गया। ठीक है जी। हुण ये की है, देखो दिस इज ओरिजिनल सैलरी एंड दिस इज इनक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सैलरी। सो इसनूं की करते हैं, हुण टोटल कर दिंदे हैं। 1 मिनट बैटरी बंद कर दी है इत्थों। इन्हां नूं टोटल करता, टोटल करके अपने कोल आ गया 13 ते 15 45। ठीक है जी। इत्थे आ गया जी अपने कोल 80 ते अगे अपने कोल आ गया 70 ते 35 105। हुण देखो इसनूं थोड़ा जिहा कैंसल कर दिंदे आ, बिकॉज होर किसी तो कटेगा नहीं। तो इत्थे आ जाएगा 9 5 का 45, इत्थे आ जाएगा 16 5 80 ते अगे आ जाएगा 21 5 105। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हुण मैं ये कह रहा सी, जे तुसीं बाय ऑप्शन चलोगे तो बाय ऑप्शन तो बहुत लंबा प्रोसैस पै जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर डी। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर लो, ताकि जो भी अपना कोई नवी वीडियो अपलोड करिए नाल दी नाल थोनू वो वीडियो अपडेट मिल जाए उस वीडियो का। तो यूट्यूब दे विच तुसीं जदों भी खोलो तो थोनू आइडिया मिल जाए कि ये वीडियो अपलोड हो गई है। सो थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन के उपर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल नैक्सट क्वेश्चन के उपर चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा होगा। क्वेश्चन है 51। कह रहे सम
सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। तो 3 नंबर्स ने जिन्हां दा सम की है 98 है। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सैकेंड, हाँ जी, सो नैक्सट क्वेश्चन दे विच की है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सैकेंड इज 2:3 एंड सैकेंड टू थर्ड इज, सो रेशियो का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है बट ये दिता होया कि रेशियो नहीं लिखी हुई। सो रेशियो दे विच की है पहला 3 नंबर्स ले लैने आ ए बी एंड सी, उसकी भी जरूरत नहीं है। वो कह रहा पहले तो दूसरे नंबर की रेशियो है, Z वाला क्वेश्चन है बेसिकली, ए एंड बी की रेशियो है 2:3 एंड सैकेंड एंड थर्ड, सैकेंड आप लिया बी, तो बी एंड सी की रेशियो की आ गई बी एंड सी, इसकी रेशियो अपने को आ गई 5:8। सो इत्थों हुण की करना है, हुण देखो अपने को बी उपर कॉमन आ गया है। जेकर तुसीं रेशियो नूं चंगे तरीके नाल पढ़िया होया है तो तुहानूं याद होएगा जो भी रेशियो दे विच अपने कोल इत्थे बी कॉमन आ जांदा आ, जदों आपां 3 नंबर्स दे विच Z वाला फॉर्मूला लगाना हुंदा तां इत्थे आपां कॉमन देखना हुंदा। इस तो बाद की है Z वाला फॉर्मूला लगा दांगे। तो 5 2 इज द 10, सो ए दी वैल्यू 10 आ जाएगी। 5 3 इज द 15 एंड 8 3 इज द 24, 8 3 24। सो ये अपने कोल नंबर्स आ गए ने। आपां नूं पुछिआ सैकेंड नंबर किहड़ा है, सैकेंड नंबर बारे गल करदे हां। दिस इज ए। सो 3 नंबर्स की रेशियो आपां बनाने तां वो Z वाले फॉर्मूले तो बनदी है ए बी एंड सी। तो इस तो बाद तां ईजी हो गया आई थिंक। हुण 10 ते 15 25, 25 ते 24 49, 49। सो टोटल पार्ट्स किन्ने हो गए 49। अपने कोल हैगा किन्ना है सम 98, मीनस एक पार्ट की वैल्यू किन्नी होगी, द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू, इतों कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगी, ठीक है। मीनस 2 इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट। हुण आपां नूं पुछिआ दूसरा नंबर की है, सैकेंड नंबर। सो सैकेंड नंबर तो तुसीं देख ही सकते हो, सैकेंड नंबर इज 15। सो 15 पार्ट्स ने इस दे कोल, तां 2 पार्ट्स 2 इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, तो 15 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 30। आई होप इस तो ईजी मैथड कोई नहीं होएगा एंड इस तरीके नाल समझण की कोशिश करो। बाकी जेकर चैनल वधिया लगे तो चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर लो, ताकि हर एक अपडेट जिहड़ा भी आपां आंदा है, जिद्दां कि कल कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट आया है, सो कोऑपरेटिव बैंक के रिजल्ट की भी अपडेट तुहानूं दित्ती गई है कि कोऑपरेटिव बैंक की वैबसाइट करके विजिट करके तुसीं रिजल्ट देख सकते हो। बाकी जे तुसीं पेपर दिंदे हो रिजल्ट वगैरह तुहानूं पता ही होने कदों आ रहे ने, इन्ना नहीं है कोई कि बिल्कुल तुसीं बैठे हो किते दुनिया दे विच तुहानूं पता नहीं लगदा। सो काफ़ी चैनल्स ने जिहड़े कहंदे ने यूट्यूब के उत्ते इदां देखो जी रिजल्ट, इदां देखो। देखो रिजल्ट जिहड़े बच्चे नूं रिजल्ट नहीं देखना आंदा वो तां फिर डिजर्व ही नहीं करदा उस चीज़ दे विच जाण वास्ते। सो रिजल्ट तो देखो इदां दी चीज़ हुंदी है, रिजल्ट हो गया, रोल नंबर हो गए, कई एडमिट कार्ड दसदे रहिंदे ने कि एडमिट कार्ड किवें देखदे। कोई जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं कड्ढना आंदा वो डिजर्व ही नहीं करदा वैबसाइट ते जाके मतलब उत्थे काम करना ऑफिस दे विच। तां बथेरी दुनिया है, कोई गल नहीं, बट फिर भी इदां चलो टाइम खराब करना है 100 वारी करी जाइए आपां कि इदां रोल नंबर देखो, इत्थों एडमिट कार्ड देखो। बाकी चलो जरूरत भी हुंदी कई बारी। अब मिक्सचर कंटेन, अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 4:3। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशो बिकम्स 4:5। द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर इज। हुण इत्थे 2 मैथड ने, देखो मैं कोशिश करांगा दोनों मैथड्स के बारे तुहानूं दस सकां, बाद च गल करांगे कि किहड़ा मैथड सुटेबल है, किहड़ा तुहानूं ईजी लगदा, वो तो देखो तुसीं देखना है। हो सकदा तुहानूं मेरे दोनों मैथड ईजी ना लगन। सो क्वेश्चन तुसीं पढ़ लिया है, हुण देखो सॉल्व किवें करना है। एक तां सिंपल मैथड है अपने कोल, बहुत ही ईजी मैथड जिहड़ा ट्रैडिशनल भी मान सकते हैं कि इत्थे मान लिया आपां, एक मिनट जी क्वेश्चन ले आइए क्वेश्चन स्क्रीन तो। हाँ जी, सो बेसिकली वट विल हैपन, बिल्कुल बेसिक मैथड दस रहे हैं कि देखो अल्कोहल अपने कोल किन्नी है 4x, वाटर अपने कोल किन्ना है, वाटर अपने कोल हैगा आ 3x। सो 4x एंड 3x कि साग दे भी मौसम आ गए। सो चलो ये तो पिछे बैकग्राउंड की आवाज़ का कुछ कर नहीं सकते, जी भी आती है चलो कोई गल नहीं, वीडियो चलन दें। सो 4x इत्थे वाटर दे विच की करता, वाटर दे विच आपां कुछ ऐड करता, वाटर दे विच 5 लीटर वाटर होर ऐड करता। सो 5 इत्थे ऐड कर देंगे। 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5, तो रेशो की बन जाएगी 4:5। ये अपने को क्वेश्चन है। इस तो बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो उस x की वैल्यू पुट कर देना है। पूछा कि है क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल
इन द गिवन मिक्सचर। सो एक बार ट्राई कर लेने, 4 5 का 20 आ जाएगा, 20x इज इक्वल टू 4 3 का 12 आ जाएगा, तो 5 का 20 आ जाएगा। इत्थे आ गया जी 12x। सो इट इज इक्वल टू 12x माइनस प्लस 5 4 का 20। ठीक है जी। सो इत्थों आ गया 8x इक्वल टू 8x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20/8। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई 20/8 या 10/2 या इथों की आएगा अपने को आंसर 10/2 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई अपने को 10/2। एक मिनट 5/2 आई, सॉरी 10/2 नहीं आएगी, इट विल बी 5/2। सो टाई आ जाएगी ना 2.5, मैं पॉइंटा के विच नहीं ले रहा, चलो। सो इट इज इक्वल टू 5.2। हुण की करना है, इन द नैक्सट पार्ट यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। हुण अल्कोहल के कितने पार्ट सीगे, अल्कोहल के सीगे अपने कोल 4 पार्ट्स। ए अल्कोहल सी 4x। सो अल्कोहल कितनी आ गई 4 × 5/2 या 4 नूं 2.5 दे नाल मल्टीप्लाई कर लो, उत्थों भी आ जाएगा। सो 2 2s दा 4 ते इत्थों आ गया 5 2s दा 10। सो 10 लीटर विल बी द राइट आंसर। 10 लीटर थोड़े को की आ जाएगी, 10 लीटर विल बी द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। सो इस तरीके नाल स्टूडेंट क्वेश्चन नूं कर सकते हो। बाकी एक होर मैथड भी है, मैं उस क्वेश्चन नूं उस मैथड नाल भी दस्सण दी कोशिश करदा हां। सो आई थिंक शायद तुहानूं वो भी ठीक लगे। सो हेयर आंसर विल बी डी ऑप्शन। सो एक मैथड तो यह है कि तुसीं ट्रेडिशनल मैथड फॉलो करो, अच्छा मैथड है और गलती के चांस काफ़ी घट रहिंदे ने इस टाइप के क्वेश्चन जो तुसीं करदे हो, इस तरीके नाल करदे हो। बट कई बारी की हुंदा है आपां जल्दबाजी दे विच गलती कर दिंदे आ, बड़ियां असीं भी कीतियां ते बट कोशिश करनी चाहिए जिन्नियां गलतियां घट जाण उन्ना चंगा हुंदा है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 52 अपना हो चुका है एक मैथड नाल। दूजा मैथड की है, दूजा मैथड भी समझ लो। दूजे मैथड दे विच की है, पहलां तुसीं लिख लैणी है पुरानी रेशो। पुरानी रेशो है 4:3, नवीं रेशो है 4:5। हुण देखो इत्थे एक बिल्कुल ईजी जी चीज़ दिख रही है कि देखो अल्कोहल ये है तो वाटर किहड़ा है, वाटर अपने कोल ये है। हुण अल्कोहल की क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हुई, देखो ये पहला भी 4 पार्ट्स है। जे पार्ट्स इक्वल ना हो तो इक्वल करने भी पैंदे ने, मैं दसांगा कदी। जेकर यह अल्कोहल इक्वल ना होंदी तो इक्वल करनी भी पैंदी है कई बारी। सो इत्थे की है मल्टीप्लाई करके वो भी दसांगे जदों। फिलहाल की है इत्थे भी 4 है, इत्थे भी 4 है। दैट मीनस अल्कोहल तो चेंज नहीं हुई, सही है। हुण होया की चेंज, वाटर चेंज होया। वाटर कितना चेंज होया इस दे विच देखो, हुण 3 तो 5 हो गया है ना, मीनस किन्ने पार्ट्स ऐड हो गए, 2 पार्ट्स। 2 हिस्सियां दी वैल्यू किस दे बराबर आ गई, 2 हिस्सियां दी वैल्यू 5 लीटर दे इक्वल आ गई। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू आ गई अपने को 5/2। ठीक है, इस तरीके नाल भी समझ सकते हो। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अल्कोहल के किन्ने पार्ट्स ने अपने को, अल्कोहल के अपने को हैगे ने 4 पार्ट्स। सो अल्कोहल के जेकर पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं तो अल्कोहल की वैल्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो 4 पार्ट्स ने, तो 4 × 5/2 करके आप इत्थों अल्कोहल की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके नाल भी थोड़ा आंसर सेम ही आएगा, बस कंसैप्ट का फर्क है कि थोड़ा जिहा टाइम किसी दे विच बच जाता है, किसी दे विच वध जाता है, डिपेंड करता है थोनू किहड़ा मैथड ईजी लग्या। बाकी इस क्वेश्चन दे विच एक होर चीज़ कह देना है कि इत्थे जिहड़ी वैल्यू सीगी अल्कोहल की वो ऑलरेडी बैलेंस सी, मीनस ऑलरेडी सेम सी। इत्थे भी 4 ही आ रहा सी, इत्थे भी 4 ही आ रहा सी। इस करके क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ईजी इस मैथड नाल लगेगा। बट जदों ये थोनू बराबर बनानी पएगी, अल्कोहल की वैल्यू लेट्स सपोज अलग अलग दी हुई है, जदों थोनू बराबर बनानी पएगी उस केस दे विच क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। अगे क्वेश्चन आएगा मैं जरूर दसांगा, फिलहाल तुसीं इन्ना क मैथड समझ लेना है। किते कोई प्रॉब्लम लगती है मैसेज ड्रॉप करना है, मैं अपना नंबर एक बार लिख देना है क्योंकि आई थिंक अज की वीडियो के अजे तक नंबर नहीं लिखा गया। सो नंबर अपना है 8727955300। सो इस नंबर के उत्ते तुसीं कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वायरी है थोड़ी किसी भी पेपर के नाल रिलेटेड, किसी भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन के नाल रिलेटेड, तो तुसीं इस नंबर के उत्ते मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं कोशिश करांगा कि जल्दी तो जल्दी उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप थोड़े तक करिए। सो इस तरीके नाल क्वेश्चन अज के 5 कंप्लीट होंगे ने। एक दो क्वेश्चन और कर लैंदे जेकर वधिया क्वेश्चन लगते हैं अगे इंटरस्टिंग, क्योंकि अच्छे टॉपिक्स चल रहे हैं। अगे चलते हैं। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ
36 students in which ratio of boys and girls is 3, how many girls will be included in the group so that ratio of boys and girls become 9:5? सो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस करने वाला मैथड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 36 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬॉयਜ਼, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਗਰਲਸ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3:1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਟੂ ਗਰਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣ ਜੇ, ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜੇ 9:5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9:5। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬॉयਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰਹਿਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬॉयਜ਼ ਸੇਮ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 9:3, 3 is ਦਾ 9, 9:3। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 9:5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 9:3 ਐਂਡ 9:5। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਪਾਰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। 9+3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 9+3 12। ਸੋ 36 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 12 ਟੋਟਲ ਨੇ, 12 ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਸੋ 12 36। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗਰਲਸ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਗਰਲਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਪਾਰਟਸ, 3 ਤੋਂ 5, 3 to 5। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਮੀਨਸ 3 into 2 6 ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਂਸਰ। ਕਿ 6 ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9:5 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਂਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ 9:3 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਦੇ ਆ ਗਈ ਇਕੁਅਲ, ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ 9:3 ਸੀ ਤਾਂ 9 ਤੀਆ 27 ਬॉयਜ਼ ਆ ਗਏ, 3 ਤੀਆ 9 ਗਰਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 27:9। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 6 ਗਰਲਸ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 9 ਤੇ 6 15 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀ 27:15। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਈ ਜਾਏਗਾ 9 ਤੀਆ 27 ਤੇ 5 ਤੀਆ 15। ਸੋ 9:5 ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 6। ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 3x ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ x, ਤੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 3x by x plus 6 will be equal to 9:5। ਇਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। क्वेश्चन नंबर 54 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशो बिटवीन नंबर ऑफ पेन्स एंड बुक्स एंड अ कॉपी इन अ शॉप आर 5:5:6 इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 360 फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। देखो बेसिकली इजी क्वेश्चन लग रहा है। पूछया की है, कहता रेशो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स बुक्स एंड कॉपीज। सो पेन बुक एंड कॉपी दी रेशो है 4:5:6। नंबर ऑफ पेन्स थोनू दिते हुए ने किन्ने ने, नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू हैगे ने 360। हुण ये 360 कदों बननगे, जेकर आपां इसनू 90 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, 9 चौका 36। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 90। दैट मीनस एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 90। हुण एक हिस्से की वैल्यू 90 आ गई। उन्हें पूछा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। बुक्स एंड कॉपीज देखो कितनियां ने, 5 ते 6। टोटल कितने हिस्से हो गए, 5 ते 6 11। सो 11 नूं आपां मल्टीप्लाई कर दांगे। सो 11 नूं कर दांगे 90 दे नाल मल्टीप्लाई। सो 11 गुणा 90 तो अपना आंसर आ जाएगा 11,999। सो 990 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज विल बी इक्वल टू 990। सो 990 आंसर आ जाएगा। चेक कर लेने। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। गल करते हाँ नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 55। सो क्वेश्चन की कह रहा है, इफ देयर आर 3 नंबर्स, इफ 3 नंबर्स आर इन रेशो, रेशो दी हुई है 3 नंबर्स की। सो इत्थे स्क्रीन के उत्ते थोड़े को 3 नंबर्स की रेशो दी हुई है। इस रेशो नूं पहलां आपां नूं सिंपल रेशो दे विच कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज ये रेशो की है, ये रेशो जिहड़ी है फ्रैक्शन दे विच गिवन है। फ्रैक्शन दे विच किवें, फ्रैक्शन दी हुंदी है जिद्दां 1/3 1/2 इदां फ्रैक्शन हुंदी है। सो इस फ्रैक्शन नूं आपां सिंपल रेशो दे विच कन्वर्ट करना है पहलां। सो रेशो देख लैंदे की है। रेशो आपां नूं 3 नंबर्स की गिवन है, 1:2 1/2 2/3 एंड 3/4। हुण देखो जदों भी आपां रेशो नूं फ्रैक्शन वाली रेशो नूं कन्वर्ट करना है सिंपल रेशो दे विच, तां उसदा जिहड़ा डिनोमीनेटर है उहनां दा आपां नूं एलसीएम लेना पैंदा है, मीनस कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमीनेटर टर्म्स। सो इत्थे 3 4 ते 2 दा कॉमन मल्टीपल अगर देखिए, एलसीएम भी ले सकदे हो। सो एलसीएम अपने कोल आ जाएगा 12। सो इहनूं सारे नूं की करना है, 12 दे नाल आपां मल्टीप्लाई कर देना इस रेशो नूं। जदों इसनूं 12 नाल मल्टीप्लाई करांगे अपने कोल आंसर आ जाएगा। पहला रेशो आ जाएगी, रेशो बन जाएगी नंबर्स की रेशो आ जाएगी 6। रेशो 2/3 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 4 तिया 12 ते 4 दूनी 8। सो 6/8 रेशो 4 तिया 12 ते 9। सो इट विल बी द रेशो। पहले तो आपां रेशो नूं सिंपल बनाना है, ठीक है। सो ये रेशो आ जाएगी 6/8/9। ते उस तो बाद की कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देना समझ लेना है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट किहड़ा हो गया जी 9, स्मॉलेस्ट किहड़ा हो गया 6। सो 9 और 6 का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस दिता हुआ है 45। हुण ध्यान देना, देखो 45 नूं किस दे इक्वल लिख सकते हैं, 45 इज इक्वल टू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों के बराबर लिख सकते हैं ना आपां इहनूं, क्योंकि 9 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है 3। तो 3 हिस्सों के किहदे बराबर आ गए 45 दे। एक हिस्से की वैल्यू किहदे बराबर आ गई 15 दे। आपां नूं की पूछा गया है, आपां नूं स्टूडेंट्स पूछा गया है व्हाट इज द मिडल नंबर। सो मिडल नंबर फाइंड द मिडल नंबर। मिडल नंबर तो अपने कोल यही है 8 फिर, ठीक है। एक ग्रेटेस्ट हो गया, एक स्मॉलेस्ट हो गया, एक मिडल हो गया। सो इत्थे मिडल नंबर किन्ने हिस्से ने, मिडल नंबर के कोल अपने कोल 8 हिस्से ने। सो 8 के अकॉर्डिंग अपने कोल 8 पार्ट्स आ जाएंगे। सो 8 का इसका आंसर बन जाएगा 8 इंटू 15। सो 15 हिस्से, 15 एक पार्ट की वैल्यू है, 8 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 15
सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 120। सो 120 आंसर आ जाएगा। इस मैथड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਨੇ 2 3 ਐਂਡ 4 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਐਸਟ ਕਾਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 12 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 24 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ सेम ही आना सी। सो इस तरीके ना अपना आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 55 क्वेश्चन नंबर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो हर क्वेश्चन नूं ध्यान देना, समझते रहना है। जेकर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नूं लाइक शेयर एंड चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। सो 55 नंबर क्वेश्चन अपना हो चुका है। लैट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। सो 56 फिर तो एक उदां का ही क्वेश्चन जिद्दां दा पहला आपां कर चुके हैं कि कुछ पैसे हैं। सो 56 अगे चल जाने, ठीक है जी। अ बॉय हैज़ फ्यू कॉइन्स। हुण एक बार इस क्वेश्चन नूं तुसीं वीडियो नूं पॉज करके ट्राई जरूर करो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपां थोड़ी देर पहला भी कर चुके हैं। सो ट्राई जरूर करो एक बार क्वेश्चन नूं, फिर आपां इस क्वेश्चन के बारे गल करते हैं। सो कह रहा है अ बॉय हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ डिमोनेटेशन 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे in the ratio of 1:2:3। if the total amount of coins is 6.50 rupees then number of 10 पैसा coins। सो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। सो करना की है, पहले तो आप इत्थे लिख लेनी है पैसे की अमाउंट, जी आपको अमाउंट गिवन है, किन्ने किन्ने दे ने पैसे डिमोनेटाइजेशन। सो 50 और उस तो बाद 25 पैसे तो फिर की है 10 पैसे। एक बार मैथड समझ लो, उस तो बाद काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे इस टाइप के भी। सो 25 50 25 एंड 10 पैसे। आफ्टर दैट अगर गल करिए तो अपने को आ गया इत्थे, इस तो बाद आ गई अपने को रेशो। रेशो जी आपां नूं दित्ती हुई है, रेशो कितनी है 1:2:3। हुण उस तो बाद आ जाती है अमाउंट। अमाउंट किवें मिलती है, पैसेज नूं रेशो दे नाल मल्टीप्लाई करके, जिद्दां आपां पहलां कड्ढी सीगी। सो इत्थे आ जाएगा 50 पैसे, इत्थे भी 50 पैसे आ जाएगा, ते इत्थे आ जाएगा 30 पैसे। सो हुण रेशो कढ लैंदे, रेशो ईजी आ जाएगी, 0 0 कैंसल कर देंगे। सो रेशो विल बी 5:5:3। सो 5:5:3 आ गया। इस तो बाद देखो हुण की करना है, अपने को टोटल पैसे किन्ने बन गए 65 6.5 रुपये ने ना। सो 65 ओके 650 पैसे हो गए टोटल। टोटल पैसे किन्ने हो गए 650 पैसे ने। टोटल हिस्से ने अपने को 13। सो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पार्ट की वैल्यू अपने को आ गई 50 पैसे। हुण आपां नूं की पूछा 10 पैसे के किन्ने सिक्के ने, पहला आपां क्वेश्चन को समझ लेना। पहला 50 पैसे आ गई अपने को सिंगल पार्ट की वैल्यू। हुण अपने को 10 पैसे की गल है तो 10 पैसे के किन्ने पार्ट्स ने 3, तो 3 पार्ट्स के किन्ने पैसे बन गए, पैसे बन गए 50 × 3 दैट इज 150। हुण 150 पैसे बनाने लई 10 पैसे के किन्ने सिक्के चाहिए, ये तुसीं फाइंड आउट करना, बस सौखा क्वेश्चन है। 150 पैसे बन रहे हैं 150 पैसे, 10 पैसे के सिक्के ने, किन्ने सिक्के चाहिए होंगे, आम जी गल है 15 सिक्के चाहिए होंगे। इनू इदां भी देख सकते हो कि n इंटू जिद्दां आपां पिछले क्वेश्चन दे विच कीता सी कि n × 10 पैसा कॉइन्स विल बी इक्वल टू 150। इत्थों कैंसल करके थोड़ा 15 आंसर आ जाएगा। सो मीनस 10 पैसे के सिक्के इत्थों किन्ने आणगे, 10 पैसे के सिक्के अपने कोल आणगे 15। सो इस तरीके नाल हर क्वेश्चन नूं तुसीं समझ लेना है। किते भी कोई दिक्कत लगती है तुसीं जरूर पूछना है। मैं अपने वालों बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा, फिर भी हो सकता किते किसी नूं कोई डाउट रहे। सो ये दोबारा देख लो, 50 गिवन सी, 25 पैसे के सिक्के सीगे एंड 10 पैसे के सिक्के सीगे। रेशो गिवन सी 1:2:3। आपां अमाउंट की रेशो कट ली, दैट इज 50:50:30। उस तो बाद इन्होंने सॉल्व कर लिया 5:5:3। हुण टोटल हिस्से किन्ने ने, टोटल हिस्से ने 5 + 5 + 3 13। सो पैसे किन्ने बन रहे हैं अपने को 650 पैसे। सो 650 के अकॉर्डिंग 50 पैसे इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट
ਹੁਣ 3 ਪਾਰਟਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-10 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 150 ਪੈਸੇ। ਸੋ ਇਹ 150 ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ 10-10 ਪੈਸੇ ਦੇ। ਸੋ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, n ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ 15 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ 15 ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 56 ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the angles of a triangle are in the ratio 7:3:8। ਤਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਆਰ 7 ਰੇਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਗਲਸ ਆਰ A, B and C। So there are 3 angles, let's suppose their ratio is given and 7:3:8। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, find the difference between, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, find the difference between the greatest and the smallest। ਸੋ greatest ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, smallest ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ 7 + 3 + 8, 7 + 3 + 8, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 18। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180। ਸੋ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 180। ਸੋ 18 ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 180 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ 1 ਪਾਰਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਹੈ 5 ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 50। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਇਹ 70 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ 30 ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 80। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 80 ਔਰ 30 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ 50 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਔਰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, 5 ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ 50। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57 ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58। If an amount is divided among PQR in the ratio 3:5:6 and R gets 400 rupees more than Q, the difference between, बहुत ही easy question है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करांगे। PQR 3 नंबर्स ने, PQR 3 परसनस ने, सॉरी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਅੱਛਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:5:6। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 3:5:6। so this is the ratio in which rupees are divided। ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ R gets 400 more than Q। so means ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੇਖੋ R ਨੂੰ ਮਿਲੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਤੇ Q ਨੂੰ ਮਿਲੇ 4 ਹਿੱਸੇ, ਸੌਰੀ Q ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5 ਹਿੱਸੇ। that means ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, this value is equal to 400। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 400 ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, what is the find out the difference between the share between P and Q ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, P and Q ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। P and Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਪਾਰਟਸ ਦਾ। ਸੋ 2 ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਹੈ, 2 ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 800 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। PSPCL ਕਲਰਕ ਲਾ ਲਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ
इस टाइप के ही पूछे जाएंगे। इदा नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। पेपर ठीक होंगे ने, पटवारी की गल कर लो, कोई भी पेपर कर लो गल, पेपर ठीक होंगे ने। गल बस ये है कि कंपीटीशन के मार पैंदी है थोनों, उस मार तो उपर उठन लई हुण की तुसीं एफर्ट्स करने ने, वो तुसीं देखने ने। बाकी असीं भी देख रहे हैं अगे जी, अगे होर कुछ वधिया होवे जिथे हैगे आ, ठीक आ। बाकी अगे गल करांगे इस अगली वीडियो दे विच अपने कैरीयर बारे लेके। हजे कैरीयर का कुछ अपडेट फिलहाल कुछ खास चल नहीं रहा, अगली वीडियो में जरूर दसांगे। होपफुली कुछ ना कुछ वधिया तुहाडे वास्ते खबर लेके आवांगे। गल करते हैं अगली क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 59। तो अज की वीडियो के आई थिंक क्वेश्चन जिन्ने हो गए ने काफ़ी ने। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3 इन अ स्कूल। अगे पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीजेस बाय 200 then the ratio becomes 4:7. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। हुण बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। हुण इस क्वेश्चन को मैं दो मैथड नाल दस सकदा हां। पहला मैथड तुहानूं बराबर करने वाला दसदा है। पुरानी रेशो की है 2:3, नवीं रेशो की है 4:7। हुण देखो होया की है, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा इत्थे बॉयज है, एक मिनट कलर चेंज कर लेंगे ताकि क्लीयरली पता लग जाए। इत्थे बॉयज है अपने कोल ते इत्थे की ने देयर आर गर्ल्स। हुण देखो इत्थे बॉयज की रेशो इक्वल नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम क्या सी एक क्वेश्चन करवाया सी, आई थिंक सैकेंड या थर्ड क्वेश्चन सी। सो इत्थे रेशो फिर बराबर करनी पएगी, क्योंकि बॉयज तो चेंज नहीं होए, गर्ल्स चेंज होईयां ने। सो बॉयज नूं इक्वल करना पएगा, मीनस इत्थे 4 है, उपर भी तुहानूं 4 ही बनाना पएगा। तो उपर वाली जिहड़ी रेशो है उहनूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, तो अपने को रेशो आ जाएगी। आई होप इन्ना समझ सकते हो। सो इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई करता, पुरानी रेशो आ गई 4:6 ते नवीं रेशो आ गई 4:7। सो इनू लिख भी लैने, चलो थानू क्लीयर होंदा रहे। दिस इज द ओल्ड रेशो एंड दिस इज द न्यू रेशो। ये नवीं रेशो है, पुराने वाली उपर है। हुण देखो होएगा की, वट विल हैपन। इत्थे अपने कोल बॉयज तो सेम आ गए 4 एंड 4। चेंज कित्थे आई सी, चेंज अपने कोल आई सी गर्ल्स दे विच। गर्ल्स दे विच इत्थों एक पार्ट इनक्रीज होया है, और उस इनक्रीज इत्थे लिखा भी है नंबर ऑफ गर्ल्स इनक्रीजेस बाय 200। दैट मीनस दिस वन पार्ट वैल्यू, यह एक पार्ट की जिहड़ी वैल्यू है वो किस दे इक्वल है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 200। आई होप इन्ना समझ सकते हो। सो दिस वन पार्ट वैल्यू इज इक्वल टू 200। थोनू की पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। हुण देखो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, हुण पहला दा ही पूछा होगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल पहला कितनी है। चलो चेक करते हैं। 6 हिस्से ने, 201 हिस्से की वैल्यू है, तो इत्थों बन गया 1200। जे हुण प्रेजेंट पूछदा तो 7 हिस्से हो जाने सी, मीनस प्रेजेंट तो 1400 बन जानियां सी। सो पुरानियां ही पूछियां होणगियां, क्योंकि 1200 तो बाद ऑप्शन है नहीं कोई। तो इत्थों अपने कोल आंसर बन गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्कूल, जिहड़ियां पहलां प्रेजेंट सीगियां वो किन्नियां सीगियां, 6 नूं 200 दे नाल गुणा करके अपने कोल आंसर आ जाएगा 1200। 1200 विल बी द राइट आंसर फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स विच वर प्रेजेंट इनिशियली। इदां पूछा जाना चाहिए सी वैसे किन्नियां गर्ल्स इनिशियली प्रेजेंट ने, इदां नहीं कहना चाहिए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, या बाद च पूछ लेंदा कि किन्नियां है। तो 1200 ही आंसर बनेगा, होर कोई तो ऑप्शन बन नहीं रहा इत्थों। ठीक है। सो इस टाइप नाल तुसीं क्वेश्चनस नूं समझ लेना है, किते कोई दिक्कत लगती है तुसीं जरूर पूछना है। तो गल करते हैं अगला क्वेश्चन, जेकर कुछ डिफरेंट लगेगा तो जरूर करांगे, नहीं तो इस वीडियो नूं इत्थे ही खत्म करांगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन तुसीं होमवर्क दे लई लो। क्वेश्चन नंबर 60, अ मिक्सचर कंटेन, चलो मैं कर के जाना है, कोई गल नहीं, इस क्वेश्चन नूं भी करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:3। ऑन एडिंग 6 लीटर ऑफ वाटर, रेशो ऑफ मिल्क एंड टू वाटर बिकम्स 8:7। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। सो कर लेने किवें आएगा, देखते हैं। कहता 4:3 है रेशो। एक मिनट जी, क्वेश्चन ही गायब हो गया इत्थों, एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, सो रेशो दी हुई है ओल्ड रेशो 4:3। इत्थे लिख लेने मिल्क एंड वाटर, दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर। अगे चलिए जी। सो अगे कह रहा है, ऑन एडिंग 6 लीटर ऑफ वाटर, 6 लीटर पानी ऐड करने ते रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 8:7। सो 6 लीटर पानी ऐड करे ते मिल्क ते वाटर की रेशो होगी 8:7। गल होई आ, देखो मिल्क
ऑन एडिंग 6 लीटर ऑफ वाटर। देखो ऐड की किया पानी, पर मिल्क तो सेम रहना चाहिए सी, मिल्क की रेशो क्यों चेंज होगी। सो दैट मीनस आपां नूं मिल्क की रेशो बराबर बनानी पएगी। सो इत्थों फिर आपां इस नूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे ताकि उपर भी 8 बन जाए ते थल्ले भी 8 बन जाए। ठीक है, हुण गल करदे हां अगे क्वेश्चन दी। मिल्क एंड वाटर ये अपने कोल सीगे। हुण पहला मिल्क की रेशो की है 8:4 ये पुरानी रेशो है, इनू ओल्ड लिख लैने इत्थे। अगे चलिए, अगे आ गया न्यू। हुण नवी रेशो की है, जो कुछ ऐड करता, पानी ऐड करता, पानी ऐड करने तो बाद की होगी नवी रेशो न्यू। सो दिस रेशो इज 8:7। बस इन्ना क समझना है, बाकी क्वेश्चन हो गया। हुण देखो होया कि मिल्क तो सेम ही रहा, मिल्क तो अपने कोल सेम ही रहा 8 पार्ट्स। मिल्क तो चेंज होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मिल्क तो वही है ना, उन्नी क्वांटिटी ही है मिल्क की। सो मिल्क तो उन्ना ही रहेगा। वाटर ऐड हो गया, वाटर कितना होया ऐड 6 लीटर। हुण एक हिस्सा ऐड होया 1 पार्ट इज इक्वल टू 6 लीटर। 1 पार्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6 लीटर। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। उन्हें पूछा कि है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी पूछी है। देखो 8 ते 7 15, 15 हिस्से हो गए ना। सो 15 नूं 6 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 है 90। सो 15 गुणा 6 थोड़ा आंसर की बन जाएगा 15 6 है 90। सो 90 विल बी द राइट आंसर। टोटल क्वांटिटी पता लग गई ना अपन नवे मिक्सचर की कितनी है, टोटल क्वांटिटी होगी 90 लीटर। सो इस तरीके नाल सारे क्वेश्चनस नूं तुसीं प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी किते भी कोई भी दिक्कत आती है तुसीं मैसेज करके जरूर पूछना है, आपां कोशिश करांगे थोड़े डाउट्स जिन्ने भी हुंदे ने क्लीयर करन दी। बाकी नैक्सट वीडियो दे विच मिलांगे कुछ अपडेट दे नाल। बाबा भला करे सारिਆਂ दा। तो जेकर थोड़ा कोई डाउट है, किते भी कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर के उत्ते मैसेज जरूर ड्रॉप करना है। बाकी जेकर चैनल चंगा लगा होए तो चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर लो ताकि सारे अपडेट जिन्ने भी अपडेट अपने आन, चाहे वो किसी पंजाब के पेपर के नाल रिलेटेड हो, चाहे वो सेंट्रल गौरमेंट की जॉब के नाल रिलेटेड हो, उन्होंने बारे आप सारे अपडेट दईए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जिन्ना तो ज़्यादा हो सकता अपने अपने जोड़े WhatsApp ग्रुप ने उन्होंने चैनल में शेयर कर दो, वीडियो का लिंक जोड़ा है वो शेयर कर दो। तो जिन्ने भी थोड़े फ्रेंड्स प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्होंने शेयर कर दो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाबा भला करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय जी। बाकी अगली वीडियो के मिलांगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।